हेलो नमस्कार राम राम। वेलकम टू बिलीव स्टडी। बिलीव योरसेल्फ, देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। सो ये हमारा आज का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है हमारे चैनल पे। फर्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स ये एक इजी चैप्टर्स में कंसिडर किए जाते हैं क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस है जो आपको अपना स्कोर बूस्ट करने में और क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे, तो हम उन्हें देखेंगे। उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करते जाएंगे। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन, बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन हमारे पास है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें। तो सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा मैं, जैसे हमें बोर्ड के एग्जाम में लिखना होता है। सॉल्यूशन गिवन विल बी x minus y, 2x minus y, 2x plus z, 3z plus w will be equals to -1, 5, 0 and 13। हमें एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखना होगा ताकि हमें मार्क्स मिल सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, अब जैसे मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट इलस्ट्रेशंस में इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी वी हैव x minus y is equals to -1. This will be our equation number 1. Second equation will be 2x minus y equals to 0. This will be our second equation. 2x plus z equals to 5. This will be our third equation. And 3z plus w equals to 13. This will be our fourth equation. So to find x and y, we will subtract 2 from 1. Subtract equation number 2 from 1, so that we will get x minus 2x equals to -1, and hence x will be equals to 1. And we get a value of x, that is 1, and from this we will get also the value of y, which will be equals to x plus 1 equals to 1 plus 1, so y will be equals to 2. Now from y we will get the value of z and w as well. So the value of z will be, we have equation 2x plus z which is equals to 5. So we will put the value of x, so 2 plus z equals to 5, so z equals to 3. And from the same we will get 3z plus w is equals to 13. So 3 into 3 plus w equals to 13. W is equals to 13 minus 9. Hence we get w is equals to 4. Let's move to the next illustration. If A matrix is given and B matrix is given, then compute sin theta into A plus cos theta into B. So how we will solve this? Solution will be sin theta into A plus cos theta into B is equals to sin theta into A matrix sin theta minus cos theta and sin theta.
and plus cos theta into matrix of B B. This will be matrix here, so that we will get now we are calculating RHS side, so it will be sine square theta minus sine theta cos theta, sine theta cos theta, and sine square theta, plus here we will multiply the matrix with the by cos, so cos square theta cos theta sine theta minus of cos theta sine theta and cos square theta. Now now we know, now after calculating this, now we know how to solve this. So it will be simply sine square theta plus cos square theta, and this term plus this term will get cancelled, and this term plus this term will also get cancelled. So simply we can write that it will be 1 0 0 1. It will be identity matrix. Let's move to the next illustration, which is first one. Find xy if this 3 into matrix minus 2 into this matrix plus this matrix is equals to y. So first will be solution of first will be given is that I'll just simply copy this so that it will be quite easy to me and time saving also. This is given to us, which is equals to 0, so that we can do this. Now we will multiply 3 into each element of this matrix and 2 into each element of this matrix. So it will be 12 6 3 9 minus minus 4 2 6 4 plus x minus 4 3 and y is equals to 0. So now by the definition of equality, we know how to calculate this. So it will be 12 minus minus 4 plus x is equals to 0. As we know that this 0 is we can, after splitting this, it will be 0 0 0 0. So this is the first equation we get. From this we can calculate the value of x, which will be minus 16, and the equation 2 which we will get is 5 plus y, means 5 plus y, which will be equals to 0. So y is nothing but minus of 5. Now let's move to the second part of this illustration. In this given is there, first I will read this. Find the matrix X such that 2a plus b plus x is equals to 0. A matrix is given and b matrix is given as well. So okay, let's move. Given is there that 2a plus b plus x is equals to 0. So 2 into a matrix minus 1 2 3 4 plus 3 minus 2 1 5. Let us assume this matrix as x y z and w, which is equals to 0. So we will just calculate this by minus 2 4 6 8 plus this matrix minus 2 1 5 plus x y w equals to 0. And now
it will be -2 plus 3 plus x, 4 minus 2 plus y, 6 plus 1 plus z, 8 plus 5 plus w, which is equals to 0, 0 and 0. This is also called as null matrix. You might be knowing, आपको पता होगा कि इसे null matrix भी कहा जाता है. सो हमें X मैट्रिक्स पहचानना है कि X मैट्रिक्स क्या है. सो सिंपली हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले कि -2 प्लस 3 होता है 1 प्लस एक्स जो कि होता है 0. सो x इज इक्वल्स टू -1. इससे हमें x की वैल्यू मिल गई 4 माइनस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0. इससे हमें y की वैल्यू मिल गई, y होगा -2. और हमें फिर इसके बाद हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो 7 प्लस z इज इक्वल्स टू 0. सो z होगा -7 एंड हम लास्ट में w की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो 13 प्लस w is equals to 0. So w will be equals to minus of 13. यहाँ पे हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज होंगी, कि जो मैट्रिक्स में हम जो वैल्यूज पुट करेंगे वो हम एक अजम्पशन ले रहे हैं. यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है कि हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले, या हम उसे कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4. इसमें कहा गया है फाइंड ए एंड बी इफ 2a प्लस 3b. ये मैट्रिक्स ये दिया है और a माइनस 2b इक्वल्स टू दिस दिया है. सॉरी. सो सॉल्यूशन इज गिवन, हमें दिया है 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू दिस एंड a माइनस 2b इज इक्वल्स टू दिस. हमें ये दिया है. सो हमें जस्ट मैं अब गिवन गिवन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली आगे नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करता हूँ. सो हम लिखेंगे 2a प्लस 3b माइनस 2 इंटू a माइनस 2b विच विल बी इक्वल्स टू, हम सिंपली क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन से. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस 2 कर देंगे. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस कर देंगे. सो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 2a प्लस 3b माइनस 2 इंटू ए माइनस 2b, जो कि हमारा मैट्रिक्स होगा फिर 1 माइनस 2 3 2 0 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 0 1 माइनस 1 6 एंड 2. सो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें पता चलता है कि ये हमारे पास बचता है 7b विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 0 3 minus 2 2 minus minus 2, so it will be 2 plus 2 0 minus 6 0 minus 6 minus 1 minus 4. So 7b is equals to minus 5 minus 2 1 4 minus 6 minus 5. सो अब b जो होगा हमारा वो होगा 1/7 इंटू -5
-2 1 4 -6 एंड -5, ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी बी की, जो हमें निकालनी थी। तो चलिए नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखते हैं। सो लेट ए मैट्रिक्स दिया है ये, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स नथिंग बट 1 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 by 2 ऑर्डर। इसे हम कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं of order 2, show that identity matrix plus A equals to I minus A into this matrix। so इसे सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले हम LHS साइड को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा ये रहेगा। LHS will be I plus A, which will be equals to 1 0 0 1 into multiplication into matrix 0 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2, sorry, tan alpha by 2, और यहाँ पे भी रहेगा 0। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा, मतलब दिस रो इंटू दिस कॉलम देन दिस रो इंटू दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। सो हमें मिलेगा 1 tan minus of tan alpha by 2 minus of tan alpha by 2 tan alpha by 2 tan alpha by 2, और यहाँ पे भी हमारे पास मिलेगा 1। सो ये हो गई हमारी LHS साइड विच विल बी I प्लस A। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे RHS साइड, या फिर हम कैलकुलेट करेंगे अभी I माइनस A को। I माइनस A क्या होता है? सो 1 0 0 1, ये हमारे पास आ गया 0, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। अब हमारे पास आएगा यहाँ पे, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे हमें ऐड करने हैं ये दो मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 इट विल बी 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 इट विल बी 0 माइनस ऑफ माइनस tan अल्फा बाई 2, सो इट विल बी tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा हमें मिल जाएगा I माइनस ए की वैल्यू। अभी हम कैलकुलेट करेंगे RHS साइड को। नेक्स्ट पे इसी पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं। RHS साइड को, RHS होगा I माइनस ए इंटू हमें दिया गया है मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा एंड cos अल्फा which will be equal to I माइनस ए का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ tan अल्फा बाई 2 1 to cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। सो बस अभी हमें इसे कैलकुलेट करना है। जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 tan। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास दो मेथड्स हो गए। जो एक एक्सपांड करके जो मेथड होगा, मैं आपको उसी से बताने की कोशिश करता हूँ कि हम cos अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसे इससे हम लिख के देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके आगे का आप खुद ट्राई करके देखिए, डू योर सेल्फ। अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना मैं इस पीडीएफ में इसकी जो आगे की अटैचमेंट होगी वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अटैचमेंट जो होगी वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं।
पेस्ट कर दूंगा और ये आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो मैं आपको एक क्विक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हो, मतलब जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको सेम पीडीएफ अगर चाहिए हो तो आप इसे इजीली हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.believestudy.unaux.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप फिर इसके बाद इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे, मैथमेटिक्स सीबीएसई, उसमें आपको वहां पे ये नोट्स मिल जाएंगे इलस्ट्रेशंस के। और वहां पे मैंने ऑलरेडी मैट्राइसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज जो है, जो सीबीएसई में पूछे गए, वो उसका भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। जी, illustration number 6. Let A be the matrix this and f of x. This is the quadratic equation. Show that f of A is equals to 0. Use the result to find A power 5. So solution. These illustrations are quite lengthier. So in board exam, you don't need to do that stepwise that much I am doing. You can directly skip between steps, between two steps, because इट विल बी क्वाइट लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। मतलब आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा जब आप एग्जाम में बैठे होगे, तो 3 घंटे के टाइम में इतना सब लिखना पॉसिबल नहीं है। सो हमें इक्वेशन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी ए स्क्वायर मतलब x की जगह a की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो एफ ऑफ a विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। सो अभी हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर मतलब अभी हम ए की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे जैसे होगा। सो ए स्क्वायर विल बी सिंपली ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल्स टू 2 3 minus 1 2 into 2 3 minus 1 2 which is equals to 1 12 minus 4 and 1। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। देन फिर इसके बाद हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, मतलब फिर ए स्क्वायर की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में डाल देंगे। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 1 12 माइनस 4 1 माइनस 4 इंटू 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7 will be 1 12 minus 4 1 minus 8 12 4 8 plus 7। एंड हमें इक्वेशन एंड हमें सॉरी एंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब पूछा गया है कि शो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सो हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली हम इनको पहले ऐड कर देंगे। अगर अब यहाँ पे 7 दिया है, 7 7 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चिपका देना है। अगर यहाँ 7 दिया, अगर यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है उसके सामने, अगर 7 हमें कांस्टेंट टर्म दी है, तो हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करके हम इसके सामने आई आई चिपका देंगे। और बस फिर क्या, फिर हम यहाँ पे 7 0 0 7, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 माइनस 8 प्लस 7 12 माइनस 12 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 0 1 माइनस 8 प्लस 7। तो ये दिया है हमारे पास एफ ऑफ ए। सो बस एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए हमारा आ जाएगा 0। सो यस, हेंस प्रूव्ड।
हेंस प्रूव्ड, हमने उनको दिखा दिया, क्वेश्चन वालों को हमने दिखा दिया कि हम एफ ऑफ ए जीरो ला सकते हैं। सो बस हमने ला दिया। अब और इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, यूज द रिजल्ट टू फाइंड ए पावर 5। इनका कहना ये है कि इस रिजल्ट को यूज करके ए पावर 5 भी कैलकुलेट करो। अब ये क्या बोल दिया इन्होंने, इन्होंने ये बोला है कि बस कुछ नहीं, लिखते जाओ, जैसा मैं लिखता हूँ समझते जाओ। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये तो हमें दिया था पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस 7i, बचपन का ज्ञान, प्लस माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस ए स्क्वायर को ए क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो ए क्यूब जो होगा हमारा वो होगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, फिर ये जो टर्म है हम इसे भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4a माइनस 7i इंटू ए, ये हमारा बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 7ai। सो बस अब हम ऐसे ही इसे कैलकुलेट करते जाएंगे आगे आगे, और फाइनली अब हमें क्या करना है, एक हमें यहाँ पे पैटर्न नोटिस करना है। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली इसके बाद क्या होगा। यहाँ होगा ए क्यूब विच विल बी इक्वल्स टू 9a माइनस 28i। उसके बाद अब ये कहाँ से आया, इसकी इसकी स्टेप तो मैं निकल गया, ये स्टेप भी बता देता हूँ जो होगा। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4a माइनस 7i माइनस 7a। सो ए क्यूब बन जाएगा हमारा 9a माइनस, अब ये 9a कैसे बना, 16a माइनस 28i माइनस 7a। सो फिर हमारा ए क्यूब बनेगा 9a माइनस 28i। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए स्टेप वाइज कैलकुलेशन भी मैं कर दे रहा हूँ। सो बस अब हमारा हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम a पावर 4 को देखेंगे। सो हमारा a पावर, मैं क्या करता हूँ, मैं कलर चेंज करते जाता हूँ जिससे आपको फिर पता चलेगा कि मैं अब क्या किस में चेंज करो। a पावर 4 जो होगा इसके लिए हमें करना पड़ेगा a इंटू ए क्यूब इंटू ए। सो हमें इसको भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो होगा 9a माइनस 28i इंटू ए, जो हमारा बनेगा 9a स्क्वायर माइनस 28ai। सो बस अब नेक्स्ट स्टेप, ये a4 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 28a, जो कि इक्वल है 9 इंटू 4a माइनस 7i माइनस 28a। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सिंपली ये कर रहे हैं कि जो a स्क्वायर था ना, जो a स्क्वायर था ना हमारा, वो था a माइनस 7i, तो बस उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है और हमें ये मिल गया है। इतना याद रखिए, मैं इससे बीच में नहीं करता हूँ जिससे नोट्स खराब हो जाए। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो a4 इज इक्वल्स टू 36a माइनस 63i माइनस 28a which will be equals to 8a माइनस 63i। बस ये मिल गया हमें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गई हमारी a4 की वैल्यू, ये हो गई हमारी a क्यूब की वैल्यू, ये हो गई हमारी a स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें निकालनी तो a5 की, a टू द पावर 5 की वैल्यू थी, हमने निकाली 4 तक की। तो बस अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे।
सो ए पावर 5 जो हमारा होगा वो होगा ए पावर 4 इंटू ए, जो कि होगा 8a-63i इंटू ए, जो कि हमारा होगा 8a² - 63ia। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस वही सेम चीज, जिससे हो जाएगा 31a - 56i। यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने वही किया, यहाँ पे भी a² = 4a - 7i। बस इसी इक्वेशन को हमने बस इसी को सॉरी इसी को हमने इसी में इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इसकी वैल्यू को। सो अब हमारा a5 क्या होगा, a⁵ = -31 इंटू मैट्रिक्स ऑफ a 2 3 -1 2 -56। मैं क्या करता हूँ, माइनस यहाँ प्लस कर देता हूँ और यहाँ -56 0 0 एंड -56, जो कि हमारा, जिसके बाद हमारा a⁵ जो होगा वो होगा -118 -93 31 एंड -118। सो बस ये आ गई हमारी a⁵ की वैल्यू। तो चलिए, ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंदियर साइड में होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ये। अगर ये आप अपने आप मतलब बाय सेल्फ करेंगे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। सो चलिए, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन। ये क्या कह रहा है, इफ ए इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, एंड बी इज दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, प्रूव दैट ए बी। अब ये क्या है भैया, ये तो कुछ अलग सा ही कर दिया। ए बी इज इक्वल्स टू बी ये और ए इंटू ये क्या है, इसे कहते हैं टी। इसे टी, अरे आपने तो इसे ऐसे शो किया है डैश की तरह, तो हाँ इसे टी, इसे डैश की तरह भी शो करते हैं या टी की तरह भी, इसे कहा जाता है ट्रांसपोज, इसे कहा जाता है ट्रांसपोज। तो बस चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें ए बी क्या दिया हुआ है, अब हम सबसे पहले ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बस उसके बाद फिर हम पहले एलएचएस साइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आरएचएस साइड कर लेंगे, और बस देख लेंगे सही बराबर होगा तो हो जाएगा प्रूफ, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर से करेंगे। सो ए बी हमारा क्या होगा, ए बी होगा 135 - 206। हमारा बी क्या हो जाएगा, 0 - 34 120। ये हमारा ए बी हो गया। अब इसे है ना मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब आपको इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। जब आप इस नोट्स के प्रिंट करेंगे तब आपको यहाँ पे मैं आपके लिए स्पेस छोड़ देता हूँ, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे मैं सीधा ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हमारी बनेगी -206 -7 -9 -3 4 12 और 20। अब आप इसे कैलकुलेट, ए बी को आप इसे कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए मैंने स्पेस भी छोड़ दी है। आप इसका प्रिंट, आप इस पेज का प्रिंट लीजिए और इसे कैलकुलेट करके देखिए। अब ये तो हो गई हमारी, ये कौन सी साइड थी भैया, ये तो थी एलएचएस। एलएचएस तो पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कैलकुलेट करेंगे आरएचएस साइड को, किसे, आरएचएस साइड को। सो आरएचएस साइड क्या है हमारी, आरएचएस साइड है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि हमारा होगा, ट्रांसपोज तो आना ही चाहिए आप सबको। अगर वो भी नहीं आता तो सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बी हमें जो बी क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज बस इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब मैं बताता हूँ आपको। बी ट्रांसपोज हमारा होगा 0 -3 4 1 2 0, और ए ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा 1 3 5। हम सिंपली रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है।
-2 कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, 0 6। सो ये हमारा होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखिए, अब ये तो यहाँ तो मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। अब मुझे तो पता है कि ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें इसी प्रॉपर्टी को तो प्रूफ करना है। सो प्रूफ क्या करेंगे, मतलब प्रूफ कैसे करेंगे, तो बस मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली। अब जो मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा, अब यहाँ मैं करके दूंगा, लेकिन वहां आपको खुद करनी पड़ेगी। जो ऊपर के LHS साइड के लिए जो मैंने आपको जगह छोड़ी है, वहां आपको खुद को ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 0 × 1 प्लस 1 इंटू -2, 0 × 3 प्लस 1 इंटू 0, 0 × 5 प्लस 1 इंटू 6। ये हमारे फर्स्ट रो के हो गए। -3, सॉरी, -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, -3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, -3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2, 4 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6। सो बस सिंपली क्या आ जाएगा, 0 × 1 क्या होता है, 0, 0 0 होता है, प्लस 1 इंटू -2, यहाँ पे क्या होगा, -3 इंटू 1 -3 प्लस -2 माइनस सॉरी -3 प्लस -4, सो -7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 0, सॉरी 4 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 6, -3 इंटू 3 -9, -9 हो जाएगा, -3 इंटू 15, -15 प्लस 8, ये हो जाएगा -3, सॉरी प्लस 12, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 जो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। सो बस अब क्या, फ्रॉम 1 इसे 2 मान लेते हैं, और ये तो पहले निकाला था, इसे 1 कह देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 we have AB ट्रांसपोज is equals to B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। बस हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं 8 और लास्ट इलुस्ट्रेशंस मैट्राइसेस का। डिटर्मिनेंट्स के अभी बाकी है। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन के लिए। एक काम करें, इस इलुस्ट्रेशन को आपको होमवर्क के जैसा दे दे कि डू योरसेल्फ। ये आप अपने आप करके देखिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं यहाँ स्टिक कर दूंगा। तो बस चलिए, अब डिटर्मिनेंट्स की और मैट्राइसेस हमारा खत्म होता है। अब हमें डिटर्मिनेंट्स देखना है। डिटर्मिनेंट्स के जो इलुस्ट्रेशंस थे अब हम उसे देखेंगे। सो सबसे पहला जो इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 6 इंटू -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू, अब माइनर है कि को फैक्टर है भैया, अब वो तो आप देखिए क्या है, मैं नहीं बताऊंगा इस बार। -4 प्लस, जगह कम पड़ रही है भैया जी, +8 -1 1 प्लस 3 1 -3 1 2। अब क्या करना है हमें, अब तो बस 6 इंटू 12 -1 प्लस 7 इंटू
-4 -2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6, जो कि हमारा हो जाएगा 66 -42 प्लस 56, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे 80 के। 80 80 तो सी। सो बस चलिए अभी अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। अगला इलस्ट्रेशन में क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी एंड सी। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वर्टाइसेस दिए हुए हैं। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है हमारा ट्रायंगल। अब ये तो सबको पता ही होगा। बस डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसके वर्टाइसेस तो दिए हुए हैं, ये तो अपने प्रॉपर्टीज मतलब पढ़ ही लिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं पहले से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 80 स्क्वायर 1, 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर 281 282 283 111, डंडी लगा दो, फिर आ जाएगा हाफ इंटू, अब क्या आएगा, अब इसमें से कॉमन तो निकालना पड़ेगा भैया कुछ तो भी। अब कॉमन कैसे निकलेगा, कॉमन तो निकल जाना चाहिए। कॉमन हम क्या निकालेंगे, अब आपको तो पता होगा कि डिटर्मिनेंट में से अगर आप कॉमन लेते हो तो आप या तो एक रो में से लेते हो या एक कॉलम में से लेते हो। मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम में से ए को कॉमन, इस कॉलम में से ए को कॉमन ले लेता हूँ और इस कॉलम में से 2a को कॉलम कॉमन ले लेता हूँ। कॉलम कॉमन कॉलम कॉमन कॉमन, कॉलम में से 2a को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ब्रैकेट लगा देते हैं इसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ टी स्क्वायर 1, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर, T1 T2 T3 1 1 1, ब्रैकेट बंद। ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ 2a स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हमें क्या करना होगा, हम यहाँ लगा देंगे मॉड, सबसे पहले मॉड लगा देंगे। मैं बताऊंगा अब, ये कुछ अलग चीज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, रोज को इधर उधर पलटा देंगे। अब यहाँ 1 1 1 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा T1 T2 T3। कुछ नहीं किया, रोज को नहीं पलटाया, सॉरी, ये कॉलम को यहाँ ले गए और ये कॉलम को यहाँ ले आए, तो माइनस साइन लगाना पड़ा। T1 स्क्वायर 2 स्क्वायर T3 स्क्वायर। अब भैया ये तो कर लिया और यहाँ मॉड भी लगा दिया हमने। अब क्योंकि यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा ना, लेकिन जब ये बाहर आएगा ना तब ये आएगा पॉजिटिव ही, क्योंकि मॉड लगा चुके हैं। ये 2 से 2 उड़ा दिया, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट दी है क्या ट्रायंगल की, नहीं, तो यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। बस ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ये पेज कैसे आ गया बीच में, चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के, इलस्ट्रेशन नंबर 3। फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंट्री ऑफ द थर्ड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट ए एंड हेंस इवैल्यूएट। अरे बाबा रे बाबा, क्या लिख दिया इतना बड़ा बड़ा। चलिए
इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। कुछ नहीं, माइनर्स और को फैक्टर्स निकालने हैं थर्ड रो के। थर्ड रो मतलब कौन सी? ये होती है रोज, ये होते हैं कॉलम्स। देखो रो यानी ये। अब ऐसे तो क्या ही समझोगे। ये होते हैं रोज और ये होते हैं कॉलम्स। देखो जो खड़े खड़े होते हैं वो होते हैं कॉलम्स, और जो सोए सोए होते हैं वो होते हैं रोज। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। माइनर ऑफ 3 1 इज इक्वल्स टू, माइनर ऑफ 3 1 क्या आएगा भैया? अब 3 1 मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया वो। ये इसको इसको मिटा देंगे, क्या आ जाएगा? ये -7 8 -3 1। इसका क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -7 -24, जो कि हमारा बन जाएगा 17। 17 खतरा। अब चलते हैं M32 के वहां पे। M32 क्या होगा? ये थर्ड रो तो मिटा ही दो पहले से। अब ये सेकंड कॉलम मिटाओ। अब तो सेकंड फिर क्या बनेगा? 6 8 1 1, जो कि हमारा बन जाएगा 6 -8, विच विल बी इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे? अरे थर्ड रो क्यों हट रही है? थर्ड कॉलम भी हटा देंगे। फिर माइनर ऑफ 3 which will be equals to 6 -7 1 -3, which is equals to 6 into -3 -1 into -7। कितना हो गया भैया जी? ये तो हो जाएगा -18 +7। ये बन जाएगा हमारा -11। हाईलाइट कर दूं इसे? ये 2, 11 -11 और ये 17। अब तो माइनर तो निकाल लिए, अब क्या करना है? को फैक्टर्स भी निकालने हैं। चलो को फैक्टर्स भी निकाल लेते, को फैक्टर्स भी हाथों हाथ निकाल ही लेते हैं। सो C31 को फैक्टर्स, C31 which will be equals to -1 power 3 plus 1 into M31, जो कि हमारा होगा। अब ये देखो क्या है, पावर क्या हो गई? पावर आ गई इवन में। तो 1 का पावर इवन मतलब 1 हो जाएगा। 1 इंटू माइनर ऑफ 3 1 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। वैसे ही C32 जो हो जाएगा -1 3 + 2 इंटू M32 जो हो जाएगा -1 इंटू 2, जो कि हो, सॉरी यहाँ -2 आएगा, जो कि आएगा इक्वल्स टू -1 इंटू -2, जो कि हो जाएगा 2। अब हमारा C33 जो होगा वो होगा -1 पावर 3 + 3 इंटू माइनर ऑफ 33 विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू -11, जो हमारा फिर से हो जाएगा -11। बस यही है, और कुछ नहीं। और कुछ करना है क्या इसमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी सॉल्व करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे सॉल्व करेंगे? अब माइनर को फैक्टर तो निकाल लिए, अब इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है A31 इंटू C31 प्लस A32 प्लस C32, सॉरी प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। C2 प्लस A33 इंटू C33, जो कि हमारा बनेगा 2 इंटू 17 प्लस 1 इन, अरे +1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू -11, जो कि हमारा कुल हो जाएगा। ये कितना होगा? ये तो हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +44
कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 80, 80 80 80 तो सी। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भैया, ये तो फोर्थ नंबर का है। क्या कह रहा है ये, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए एंड इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। बाबा रे बाबा, कितना बड़ा हो गया ये, कितना बड़ा, कितना सारी चीजें ढूंढने बोल दिया ये। वेरीफाई, क्या क्या वेरीफाई करने बोल दिया ये, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और बाबा रे बाबा। चलो कोई ना, सोल्यूशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया गया है यहाँ पे, 4 -6 1 -1 -1 1 -4 1 1 -1, जो कि हमारा, अब मैं इसे है ना लिखते नहीं बैठूंगा, आपको इसे कैलकुलेट करना आना चाहिए जल्दी जल्दी। इसका हो जाएगा वैल्यू सीधा -25, जो मैं आपको बता, जो मतलब मैं डायरेक्ट अब वैल्यूज लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए वीडियो भी। सो अब मैं डायरेक्टली को फैक्टर्स जो है ना उसकी मैं वैल्यूज लिखना चालू करूंगा। C31, C32, C33, C31 किसके इक्वल होगा, ये होगा -10 के इक्वल, होगा -5 के इक्वल, होगा -15 के इक्वल। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले बता देता हूँ कि कैसे होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि होगा, सो सॉरी, ये ये यहाँ मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। Cn, अब यहाँ जो भी है नंबर वो समझ लीजिए आप, अगर C11 निकालना है तो उसका क्या होगा, -1 इन पावर n+1। अब ये क्या लिखा है, अब यहाँ n+1 क्या मतलब, क्या समझोगे, अब यहाँ पावर में क्या आएगा, जो ये है ना एंट्री नंबर, एलिमेंट नंबर, वही आएगा। n+1 लिख देता हूँ, n+1 मतलब क्या मैं यहाँ x+y लिख देता हूँ मतलब, या फिर आप समझ लो यहाँ m+n एकदम परफेक्ट हो जाएगा, m+n इंटू माइनर ऑफ, इसी का माइनर जो होता है, बस इस फॉर्मूले को यूज करो, आपको अपने कोफैक्टर्स की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। C21, C22, C33, सॉरी C23 इक्वल्स टू C31, C32, C33। अब C21 क्या होता है, 5, C22 क्या है, 0, ये होता है -20, ये है -5, ये है -5, और ये है -10। यहाँ क्या लिखना है ना, यहाँ मतलब वही 1 1, अगर जिस जिस भी एलिमेंट का निकालना है तो बस, अब ये तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें तो निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए, डी जे ऑफ ए, जो कि हमारा बनेगा -10, 5, -5, -5, 0, -5, -15, -20 और -10। एडजॉइंट ऑफ ए यानी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया गया है, अब हमें इसका भी क्या लेना है, इसका भी हमें अब ट्रांसपोज लेना है। सो ये हमारा हो जाएगा -10, -5, -15, 5, 0, -20, -5, -5, -10। ये हो गया भैया जी एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या वेरीफाई करना है,
वेरिफिकेशन ऑफ A into adjoint of A इक्वल्स, अब ये मैट्रिक्स क्या है, 4 माइनस 6 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 4 11 माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए क्या दिया है, माइनस 10 5 माइनस 5 माइनस 5 10 शून्य 20, सॉरी मैं रैंडमली कहीं पे भी लिख रहा हूँ, 15। इसे कैलकुलेट करने पड़ेगा, अब हो जाएगा माइनस 40 प्लस 30 माइनस 15, ये हो जाएगा 20 माइनस 0 माइनस ऑफ 20 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 10 10 प्लस 5 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 20 5 प्लस 5 माइनस 10 40 माइनस 55 प्लस 15 माइनस 20 प्लस 0 प्लस 20 माइनस 55 प्लस 10, अब ये हो जाएगा माइनस 25, 20 माइनस 20 शून्य, 20 30 माइनस 30 शून्य, ये हो जाएगा 15 माइनस 15 शून्य, ये भी हो जाएगा माइनस 25, 10 माइनस 10 शून्य, ये हो जाएगा 55 माइनस 55 शून्य, ये 20 माइनस 20 शून्य, ये हो जाएगा माइनस 25 फिर से, तो ये क्या होगा, माइनस 25 को लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 25 into I is equals to determinant of A into I3. Similarly हम adjoint of A into A is equals to mod of A into identity matrix, बस हमने वेरीफाई कर लिया है। अब मेरे पास और एक और दो होंगे शायद, हाँ और दो मेरे पास अभी अवेलेबल है इलस्ट्रेशंस, लेकिन मैं है ना आपको ये बाय सेल्फ सॉल्व करने के लिए दूंगा, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा नीचे दोनों का, लेकिन आप ये खुद से एक बार ट्राई कीजिए। मैं क्या करूंगा, ये जो इलस्ट्रेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ये इसे अभी के लिए रहने देते हैं, इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, ट्राई ट्राई योर सेल्फ ट्राई। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वही अगर आपको इसके आज के लेक्चर के नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे आपको तरह तरह के नोट्स मिल जाएंगे। सो बस आज के लिए थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए।